ہماری بزم نے یہ طے کیا کہ ان کے اعتراف خدمات میں انہیں ان کی شخصیت کو خطاب عطا کریں، لہذا میں صدر بزم کاروان میسم شاعر اہل بیت محترم اقبال احمد اقبال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سپاس نامہ آپ حضرات کے گوش گزار کریں۔ بخدمت شاعر اہل بیت محترم میر روشن علی صاحب، السلام علیکم۔ شہر ولائے علی و عزائے حسین کے تمام مومنین اعظم اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی علمی اخلاقی قداور ہستی تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کا شمار شہر کے باوقار اہل نظر اہل سخن افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کی شرافت نفسی، حسن اخلاقی، سنجیدہ مزاجی کا اعتراف ہر وہ شخص کرتا ہے جو آپ کے رابطے میں ہے۔ میدان عمل میں آپ ایک انجمن، ایک ادارہ، ایک تحریک کے مسلسل کی خوبیاں رکھتے ہیں۔ آپ نے جذبہ محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اظہار کا ذریعہ شعر کو بنانا اپنا شعور، اپنا شیوہ ایمانی سمجھا۔ منفرد انداز بیان، تشبیہات، استعارات، تراکیب، محاسن آپ کے کلام کو انفرادیت عطا کرتے ہیں۔ آپ نے تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، علم عروج پر آپ کی گرفت مضبوط ہے۔ آپ کا کلام بلاغت نظام سامعین کو نہ صرف اپنی جانب متوجہ کرتا ہے بلکہ مستند شاعر تسلیم کرواتا ہے۔ محافل میں جہاں آپ کی منقبت خوانی مومنین کے چہرے شاداب اور دل شاداں کرتی ہے، وہیں مسالموں میں آپ کا سلام عزاداروں کی آنکھیں نمناک کرتا ہے۔ عرصہ حیات کے اس طویل سفر میں خلوص نیت، صاف دلی، نیک ارادی و بے نیاز ستائش ہو کر تقریباً 50 برس سے آپ کو مدح محمد و آل محمد کے لیے وقف کرنے کے عظیم جذبے کا اعتراف کرتے ہوئے ہم آپ کو شاعر اوج سخن خطاب عطا فرماتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ بطفلِ چارد معصومین علیہ السلام آپ کا دامن فکر عطائے ائمہ طاہرین سے بھرا رہے۔ آپ کے قلم سے عمدہ مضامین کے آفتاب طلوع ہوں، جس کی روشنی قادم آخر آپ کی ذات کو روشن رکھے۔ آپ اپنے خانوادے کے ساتھ ہر ناگہانی بلائے سما اراضی و سماوی محفوظ رہیں۔ دنیا کی ہر خوشی و مسرت نصیب ہو، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین مظلوم کربلا کے۔ والسلام من جانب بزم کاروان میسم۔ شکریہ۔ صلوات ارشاد فرمائیے۔ اقبال احمد اقبال صاحب سپاس نامہ کوش گزارے تعین کر رہے تھے۔ شاعر اوج سخن کو یہ سپاس نامہ سرپرست اعلیٰ بزم کاروان میسم حضرت
मुमताज़ दामी साहब पेश करेंगे। बोलिए। मैं शायर औज सुपन की खिदमत में उनकी किताब और खिताब दोनों की मुबारकबाद पेश करता हूँ और कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगर इजाज़त हो तो एक तैनीयती नज़्म जो मैंने कही है पेश करना चाहता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं कि इजाज़त है। मतलब अर्ज़ किया है कि मैं जिक्र करने चला हूँ जनाब रोशन का, मैं जिक्र करने चला हूँ जनाब रोशन का, मैं जिक्र करने चला हूँ जनाब रोशन का। ये फूल हजरत इमदाद के हैं गुलशन का। जिक्र करने चला हूँ जनाब रोशन का, ये फूल हजरत इमदाद के हैं गुलशन का, ये फूल हजरत इमदाद के हैं गुलशन का। विलाई और अज़ाई फज़ा में रहते हैं, विलाई और अज़ाई फज़ा में रहते हैं कि आप हाथे दारुश्शिफा में रहते हैं। विलाई और अज़ाई फज़ा में रहते हैं कि आप हाथे दारुश्शिफा में रहते हैं, कि आप हाथे दारुश्शिफा में रहते हैं। खुदा के फजल से खंबर मिजाज पाया है, खुदा के फजल से खंबर मिजाज पाया है। दरे अली की गुलामी का ताज पाया है, दरे अली खुदा के फजल से खंबर मिजाज पाया है। दरे अली की गुलामी का ताज पाया है, दरे अली की गुलामी का ताज पाया है। अब ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं न क्यों हो आज की महफिल का ये समा रोशन, न क्यों हो आज की महफिल का ये समा रोशन। चरागे खाने इमदाद है यहाँ रोशन, न क्यों हो आज की महफिल का ये समा रोशन। चरागे खाने इमदाद है यहाँ रोशन, चरागे खाने इमदाद है यहाँ रोशन। नजर में हल्क़े अहबाब की बुलंद है ये, नजर में हल्क़े अहबाब की बुलंद है ये।
ادب نواز ہیں اور سادگی پسند ہیں یہ، ادب نواز ہیں یہ، سادگی پسند ہے یہ۔ اب یہاں سے 2 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اسی عاشقانے میں ہر سال 7 رجب کو آپ کے یہاں نورانی محفل آراستہ ہوتی ہے، اسی کے دن میں 2 شعر ملاحظہ فرمائیں کہ عقیدتوں کے یہ آئینے میں سنورتے ہیں، عقیدتوں کے یہ آئینے میں سنورتے ہیں، ظہور نور سکینہ کا جشن کرتے ہیں، عقیدتوں کے یہ آئینے میں سنورتے ہیں، ظہور نور سکینہ کا جشن کرتے ہیں، ظہور نور سکینہ کا جشن کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں روشن بھائی شیخ، رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی، رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی، مقام ان کے ہے ایک شب خوشی کی ایک غم کی، مقام رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی، مقام ان کے ہے ایک شب خوشی کی ایک غم کی۔ اب شیخ ملاحظہ فرمائیں کہ قلم کی ناؤ رواں فکر و فن کی موج پہ ہے، قلم کی ناؤ رواں فکر و فن کی موج پہ ہے، کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے، قلم کی ناؤ رواں فکر و فن کی موج پہ ہے، کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے، کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کہ اس کا قافیہ داور بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا، سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا، شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا، سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا، شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا، شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی، غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی، رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی، غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی، رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی، رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی، عروضی علم سے ہے وقفیت انہیں پوری، عروضی علم سے ہے وقفیت انہیں پوری، ثانی مصرع بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، عروضی علم سے ہے وقفیت انہیں پوری، ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری، عروضی علم سے ہے وقفیت انہیں پوری، ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری، ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری۔ اب ایک شعر میرے مزاج کا پیش کرتا ہوں۔ حسین حسین سارے نظاروں کو چوم آئے ہیں،
नजारों को चूम आए हैं, न सिर्फ मुल्क ये दुनिया में घूम आए हैं। हसीन सारे नजारों को चूम आए हैं, न सिर्फ मुल्क ये दुनिया में घूम आए हैं, न सिर्फ मुल्क ये दुनिया में घूम आए हैं। पेश करता हूँ शेर मुलाजा फरमाइए बतौर खास इस नज़्म का हासिल शेर। गरीब दिल के ये अहले दकन को रखते हैं, गरीब दिल के ये अहले दकन को रखते हैं, अजीज शायर शीरी सुखन को रखते हैं। गरीब दिल के ये अहले दकन को रखते हैं, अजीज शायर शीरी सुखन को रखते हैं। इस शेर का सबूत आपको अभी नजर में आ रहा है। अजीज शायर शीरी सुखन को रखते हैं, नजर के सामने जो अरमुगान रोशन है, नजर के सामने जो अरमुगान रोशन है, बस एक किताब नहीं ये जहान रोशन है। नजर के सामने नजर के सामने जो अरमुगान रोशन है, बस एक किताब नहीं ये जहान रोशन है, बस एक किताब नहीं ये जहान रोशन है। और अभी अभी आप साहिब किताब तो हो चुके थे, अब साहिब किताब भी हो चुके हैं। शेर बोला कि बफैज़े तज़किरे पंजतन पुकारेंगे, बफैज़े तज़किरे पंजतन पुकारेंगे, हम इनको शायर औजे सुखन पुकारेंगे। बफैज़े तज़किरे पंजतन पुकारेंगे, हम इनको शायर औजे सुखन पुकारेंगे, हम इनको शायर औजे सुखन पुकारेंगे। जितनी गुर्बतें मेरी और रोशन भाई की है उतने ही शेर हुए हैं। आखिरी शेर में पेश करता हूँ। बफज़ले आले नबी कामयाबी हाथ रहे, दूसरा मिसरा और काफिया। बफज़ले आले नबी कामयाबी हाथ रहे, दुआए मादर शब्बीर इनके साथ रहे, दुआए मादर शब्बीर इनके साथ रहे। मक्का है कि लिखी जो तहनीयती नज़्म मैंने बरजस्ता, लिखी जो तहनीयती नज़्म मैंने बरजस्ता, वो पेश करता हूँ शह पर बशक्ल गुलदस्ता। लिखी जो तहनीयती नज़्म मैंने बरजस्ता, वो पेश करता हूँ शह पर बशक्ल गुलदस्ता। इसी नज़्म को मैं शायरी और सुगंध की खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ नारे सलवात के सहारे। नूरे नूरे सकीना का जश्न करते हैं, हकीकतों के आईने में संवरते हैं, ज़ुहूरे नूरे सकीना का जश्न करते हैं,
ظہور نور سکینہ کا جشن کرتے ہیں. ملازہ فرمائے روشن بھائی شیخ. رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی, رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی, مقام ان کے ہے ایک شب خوشی کی ایک غم کی. مقام رجب کی 7 کو 19 کو محرم کی, مقام ان کے ہے ایک شب خوشی کی ایک غم کی. اب شیخ ملازہ فرمائے کہ قلم کی ناؤ رواں فکر و فن کی موج پہ ہے, قلم کی ناؤ رواں فکر و فن کی موج پہ ہے, کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے. قلم کی ناؤ فکر و فن کی موج پہ ہے, کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے, کلام آپ کا علم و ہنر کے اوج پہ ہے. اور یہ شیخ ملازہ فرمائے دیکھیں کہ اس کا خافیہ دور میں ملازہ فرمائے سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا, سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا, شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا. سخن کا رنگ نہ ہونے دیا کبھی پھیکا, شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا, شفیق ہاتھ تھا سر پر سلیم رضوی کا. یہ شیخ ملازہ فرمائے کہ غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی, غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی, رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی. غزل کی صنف ہو یا شاعری ہو اسلامی, رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی, رہے یہ دونوں میں شاگرد حضرت حامی. عروضی علم سے ہے وقف یقین پوری, عروضی علم سے ہے وقف یقین پور. ثانی مصرع بطور خاص ملازہ فرمائیے. عروضی علم سے ہے وقف یقین پوری, ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری. عروضی علم سے ہے وقف یقین پوری, ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری, ملی ہے حضرت حامی سے اس کی منظوری. اب ایک شعر میرے مزاج کا پیش کرتا ہوں. حسین حسین سارے نظاروں کو چوم آئے ہیں, حسین سارے نظاروں کو چوم آئے ہیں, نہ صرف ملک یہ دنیا میں گھوم آئے ہیں. حسین سارے نظاروں کو چوم آئے ہیں, نہ صرف ملک یہ دنیا میں گھوم آئے ہیں, نہ صرف ملک یہ دنیا میں گھوم آئے ہیں. پیش کرتا ہوں شعر ملازہ فرمائیں بطور خاص اس نظم کا حاصل شعر. غریب دل کے یہ اہل دکن کو رکھتے ہیں, غریب دل کے یہ اہل دکن کو رکھتے ہیں, عزیز شاعر شیریں سخن کو رکھتے ہیں.
لیے اہل دکن کو رکھتے ہیں، عزیز شاعر شیر سخن کو رکھتے ہیں۔ اس شعر کا ثبوت آپ کو ابھی نظر بھی آ رہا ہے۔ عزیز شاعر شیر سخن کو رکھتے ہیں، نظر کے سامنے جو ارمغان روشن ہے، نظر کے سامنے جو ارمغان روشن ہے، بس ایک کتاب نہیں یہ جہان روشن ہے۔ نظر کے سامنے نظر کے سامنے جو ارمغان روشن ہے، بس ایک کتاب نہیں یہ جہان روشن ہے، بس ایک کتاب نہیں یہ جہان روشن ہے۔ اور ابھی آپ صاحب کتاب تو ہو چکے تھے، اب صاحب خطاب بھی ہو چکے ہیں۔ شعر میں لگا کہ بفیض تذکرے پنجتن پکاریں گے، بفیض تذکرے پنجتن پکاریں گے، ہم ان کو شاعر اوج سخن پکاریں گے، بفیض تذکرے پنجتن پکاریں گے، ہم ان کو شاعر اوج سخن پکاریں گے، ہم ان کو شاعر اوج سخن پکاریں گے۔ جتنی قربتیں میری اور روشن بھائی کی ہیں اتنے ہی شعر ہوئے ہیں۔ آخری شعر میں پیش کرتا ہوں کہ بفضل آل نبی کامیابی ہاتھ رہے، دوسرا مصرع اور قافیہ، بفضل آل نبی کامیابی ہاتھ رہے، دعائے مادر شبیر ان کے ساتھ رہے، دعائے مادر شبیر ان کے ساتھ رہے۔ مقطع ہے کہ لکھی جو تہنیتی نظم میں نے برجستہ، لکھی جو تہنیتی نظم میں نے برجستہ، وہ پیش کرتا ہوں شہ پر بشکل گلدستہ، لکھی جو تہنیتی نظم میں نے برجستہ، وہ پیش کرتا ہوں شہ پر بشکل گلدستہ۔ اسی نظم کو میں شاعری اوج سخن کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں نعرہ صلوات کے سہارے۔ محمد وآل حضرات محفل اختتامی مراحل پر پہنچ چکی ہے۔ آخر میں صدارتی خطبہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے شاعر سفیر اتش نے ایک تہنیتی بند روانہ کیا ہے، وہ میں گوش گزار کر دینا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ چھ مصروں پر مشتمل ایک بند اور بیت ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہے ولائے حیدر کا نور فکر میں ان کی، ہے ولائے حیدر کا نور فکر میں ان کی، چشمے نم میں پیاسوں کے غم سے ہے ضیا باقی،
چشم نم میں پیاسوں کے غم سے ہے ضیا باقی، ذکر آل احمد سے قلب میں جلا پائی، دولتیں ہیں روشن کو یہ حسین نے بخشی، دولتیں ہیں روشن کو یہ حسین نے بخشی۔ بھائی دیکھیے کہ یہ علی کی ہے امداد اور دعائے زہرا ہے، یہ علی کی ہے امداد اور دعائے زہرا ہے، ارمغان روشن کی آج رسم اجرا ہے، یہ علی کی ہے امداد اور دعائے زہرا ہے، ارمغان روشن کی آج رسم اجرا ہے۔ شاعر سفیر اتش حضرت رشید شہیدی صاحب کے تہنیتی بند کے بعد میں آج کی محفل کے اختتامی مرحلے پر صدارتی خطبے کے لیے ملتمس ہوں قبلہ گاہی شاعر شیریں سخن حضرت استاد دانش مجد اللہ عالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے زمین خیالات کا اظہار کریں۔ ایک نعرہ خلوت بلند اور محمد اس کے فوری بعد گل پوشیوں کا سلسلہ رہے گا۔ ایک سلوات نشر فرمائی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام موجود حضرات اور تمام سامعین حضرات، ان سب سے کو مخاطب کرتے ہوئے میں بہت کم ٹائم لے کر اپنا کام ختم کروں۔ قدرت نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی، بعض کو غور و فکر کرنے کی غیر معمولی استعداد اور بعض کو اختراع اور ایجاد کا گراں قدر ملکہ عطا فرمایا، کسی کو حسین لب و رخسار دیے اور کسی کو ان کی تعریف کے پل باندھنے کا جذبہ دیا اور دل میں خلوص محبت اور ایثار کی پناہ دی۔ ان جذبوں کو دل نشین انداز میں بیان کرنے کے طریقے کو شاعری اور بیان کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعری فنون لطیفہ کی شاخوں میں ایک ہے، یہ دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے، ایک ذہنی توازن اور دوسرا اکتساب علم۔ ان دونوں سے فکر کا جذبہ وجود میں آتا ہے۔ فکر قدرت کی نعمت عظیم ہے، اس سے حاصل یہاں پہنچی ہے، نعمت عظیم ہے، اس سے حاصل ہونے والی دولت علم کا نام، دولت علم کا نام شاعرانہ تخلیق ہے، یہ کلاسیکل دور سے ہمارے یہاں پہنچی ہے۔ ہماری زبان اردو میں کئی زبانوں کے الفاظ کا سرمایہ موجود ہے۔ صنف غزل اردو کی معروف صنف ہے، ابتدا میں صرف لغوی معنی میں استعمال کی جاتی تھی، لیکن ادوار کی تبدیلی سے ان میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی۔ کلاسیکل دور ادب ترقی پسند دور اور ادب جدید دور اور ادب ما بعد جدیدیت، اب باقر صاحب یہ فرما چکے ہیں، اسی کو میں دہرا رہا ہوں، سمجھیے۔ دور ادب کربلا کے اسلامی جہاد کے بعد عیسائی ادب وجود میں آیا، کلام کو غزل کے فارم میں لکھا جانے لگا، یعنی اس کے ہر شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ کلام میں کسی شخصیت کی مصیبت، ظلم اور آزار کو بیان کیا جاتا ہے۔ نعت نگاری میں صدیوں پر اپنی صنف ہے، عالمی اردو شعراء نے نعت کو تخلیقی وسعتیں عطا کی۔ عیسائی شاعری کی اہم صنف مرثیہ ہے، جس میں ممدوح پر خیالات کو الفاظ کی شکل میں نچھاور کیا جاتا ہے۔
कम अल्फाज में जिद्दत तराजी से बड़ी अहम नाजुक बातें बयान की जाती हैं, यही उर्दू का अहम सरमाया बन जाता है, यही उर्दू का अहम सरमाया बन जाता है। जनाब मीर इमदाद अली साहब की शख्सियत हैदराबाद में मोहताज तारुफ नहीं है। मैं उनके घर की महफिल में उनके दामाद और मेरे दोस्त एजाज साहब मरहूम की वसातत से आने लगा। वो मेरे करम फरमा थे। बाद में पता चला कि मीर रोशन अली साहब मीर इमदाद अली साहब के फर्जंद अर्जुमन दिलबंद दिगर पैबंद है और बाकमाल उम्दा शेर के खालिक हैं और मौजू के साथ इंसाफ ममदू के शायान शान लफ्जियात का बाहमी सर्फ और नामौजू अल्फाज का इनराब आपकी शायरी के जुज़्व आज़म है। यहाँ ज़ेरे नज़र किताब का मसवदा अरगमान रोशन जो मीर रोशन अली साहब के कलाम का दूसरा मजमुआ है। इसमें हम्द नात मनसबत और कलाम को मुख्तलिफ मद्दाहीन के हवाले से अपनी फिक्र का असासा बनाकर पेश किया है। किस सन और किस सिन में शायरी ने रोशन साहब के ज़हने लतीफ़ पर दस्तक दी मुझे नहीं मालूम। किस सन और किस सिन में शायरी ने रोशन साहब के ज़हने लतीफ़ पर दस्तक दी मुझे नहीं मालूम। पहले तो आपका कलाम महफिलों में आपकी गैर मौजूदगी में पढ़ा जाता था और आप जब वापिस बाहर से आ गए तो शख्सी तौर पर महफिलों का एक हिस्सा बन गए। एक शेर पेश करता हूँ, मेरा शेर है, वो शेर और बगौर मुलाहिजा फरमाइए, आपकी शायरी के मुताबिक है। रोशन है किस कदर ये अमावस की रात भी, रोशन है किस कदर ये अमावस की रात भी, किसके खरम की चांदनी इस अरगुमा में है। रोशन है किस कदर ये अमावस की रात भी, किसके कलम की चांदनी इस अरमुगा में है। वाक़यात करबला को इन्होंने बड़े बड़े उलमा से और अपने ज़ाती मुताले से भी हासिल किया। इसमें तारीख़ी और गैर तारीख़ी कशमकश देखने इनकी शायराना तबीयत में शेरी साँचे में डालकर हमारे सामने पेश करने में कोई कोताही नहीं की। इसकी वजह से तारीख़ करबला की ठोस हकीकतें सामने आ जाती हैं। ऐसा मालूम होता है कि दर्द से इनका रिश्ता नहीं टूटा। जुल्म और दर्द के वाक़यात इस तरह पेश किया जैसे वो मनाज़िर आज भी हमारे सामने मौजूद है, जैसे वो मनाज़िर हमारे सामने मौजूद हैं। नासिर फ़ज़ाइल विलाए अहले बैत हज़रत मीर इब्राहिम अली हामी साहब के सामने अपना ज़ानो अदब तय किया और कलाम पर इतला लेने लगे। तकरीबन हर सिल्फ और हर बहर में आपने शेर कहे हैं। महफिल में तरन्नुम से शेर पढ़ते हैं। अगर जश्न हो तो महफिल को लालाजार बनाते हैं और मुतालमा हो तो मजलिस को ज़ारो ख़तार। यहाँ मैं एक शेर निगाह फाजली का पेश करना चाहता हूँ। यहाँ मैं एक शेर निगाह फाजली का पेश करना चाहता हूँ। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। दरमियान में कुछ वजूहात की बिना पर उस्ताद शायर हजरत शाह मशरक़ैन हजरत सलीम रज़वी साहब को भी आपने अपना कलाम बताया, लेकिन उनके इंतकाल की वजह से फिर आप दोबारा हामी साहब से रुजू हुए। आज तक ये सिलसिला जारी है। मुख्तसर ये कि मीर रोशन अली रोशन की मौजूदा तकरीर और मुकाम रोशन एक आईना ही नहीं बल्कि एक अदसा है।
جس میں کعبے کی دیوار کے تبسم سے لے کر میدان غدیر کی ولایت کے 12 رنگ بخوبی نظر آتے ہیں۔ موجودہ تخلیق ارمغان روشن ایک آئینہ ہی نہیں بلکہ ایک عدسہ ہے جس میں کعبے کی دیوار کے تبسم سے لے کر میدان غدیر کی ولایت کے 12 رنگ بخوبی نظر آتے ہیں۔ پھر یوم عاشورہ سے لے کر واپسی اہل حرم تک تمام کرب ظاہری کشمکش مصائب و آلام کا انعکاس مجلس میں بیٹھنے والے سامع پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ اس محنت کا صلہ ایک عام آدمی کیا دے سکتا ہے؟ اس کا صلہ تو پروردگار عالم پنجتن پاک اور ائمہ معصومین عطا فرمائیں گے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ان کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، ان کے اشعار کے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں۔ حمد باری تعالیٰ میں فرماتے ہیں، ہو رنگ میں ہر گل کی مہک بخشی ہے تو نے، اس دہر کے ہر باغ کی مہکی جو فضا ہے۔ پھولوں میں رنگ اور خوشبو دونوں پائے جاتے ہیں۔ اس لطیف اشارے کو باغ کی مہکی ہوئی فضاؤں سے تعبیر کر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کیا۔ فقط کیا کہتے ہیں؟ فقط میں حرف باغ کے وہ چمٹا ہوا ملا، قرآن میں ہم کو ذکر علی جا بجا ملا۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے آپ کو نقطہ با سے تعبیر کیا ہے۔ کتاب حق میں جہاں با کا نقطہ کا حرف آیا وہاں مولائے کائنات کے وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ عالم امکان میں ہے اپنے بشر محدود، جب کیسے ممکن ہے بیاں ہو فاطمہ زہرا کی شان۔ شہزادی کونین کے وقت کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی چاہیے۔ اولاد آدم اندازہ کرنے سے عاجز ہے، اس کی عقل محدود ہے تو کس طرح شان فاطمہ زہرا ذہن میں سما سکتی ہے۔ ظہور نور کی تاریخ بھی ایسی چنی رب نے، مہ کامل سے بھی جلوہ گری ثابت حسن کی ہے۔ شاعر کہتا ہے امام حسن کے ظہور نور کی تاریخ ہجری 15 رمضان میں مبارک ہے، یعنی چاند اپنے پورے منازل طے کر کے اپنی بھرپور چاندنی پیش کرتا ہے۔ اس سے امام حسن کی جلوہ گری ثابت ہوتی ہے۔ امام حسین کی مداح میں فرماتے ہیں، مردی کردگار کا اغلار ہو گیا، بس ایک ہی وہ آپ کا سجدہ حسین ہے۔ قرآن کے 30ویں پارے میں سورہ والفجر کی طرف اشارہ ہے۔ ایک سجدے میں امام حسین نے وہ منزل پائی جو نفس مطمئن کی تھی۔ اور کچھ شعر ہیں جو تین پیش کر رہا ہوں۔ کچھ ظالموں نے قوم کو فرقوں میں بانٹ دی کر، کچھ ظالموں نے قوم کو فرقوں میں بانٹ کر مذہب کے احترام کو پامال کر دیا۔ رخ اسلام پھر سے کھل اٹھا ہے، تبسم نے اثر اس کا کیا ہے۔ اولاد کی قربانی لے کر اسلام بچانے کی خاطر بستر کو محمد کے اکثر عمران بدلتے رہتے ہیں۔ عباس کے سپرد حفاظت کا کام ہے، زینب خدا کے دین کی عظمت کا نام ہے۔ عباس کے سپرد حفاظت کا کام ہے، زینب خدا کے دین کی عظمت کا نام ہے۔ پا کر در رسول سے عرفان و آگہی، روشن کو نعت کہنے کا حاصل وقار ہے۔ حضرت امیر المومنین نے اپنے آپ کو نقطہ با سے تعبیر کیا ہے۔ کتاب حق میں جہاں با کا نقطہ کا حرف آیا وہاں مولائے کائنات کے وجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ عالم امکان میں ہے اپنے بشر محدود، جب کیسے ممکن ہے بیاں ہو فاطمہ زہرا کی شان۔ شہزادی کونین کے وقت کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی چاہیے۔ اولاد آدم اندازہ کرنے سے عاجز ہے، اس کی عقل محدود ہے تو کس طرح شان فاطمہ زہرا ذہن میں سما سکتی ہے۔ ظہور نور کی تاریخ بھی ایسی چنی رب نے، مہ کامل سے بھی جلوہ گری ثابت حسن کی ہے۔
शायर कहता है इमाम हसन के ज़हूर नूर की तारीख हिजरी 15 रमज़ान में मुबारक है, यानी चांद अपने पूरे मनाजिल तय करके अपनी भरपूर चांदनी पेश करता है। इससे इमाम हसन की जलवागरी साबित होती है। इमाम हुसैन की मदा में फरमाते हैं, मर्दिए किरदगार का हवलार हो गया, बस एक ही वो आपका सजदा हुसैन है। कुरान के 30वें पारे में सूरह वलफज की तरफ इशारा है। एक सजदे में इमाम हुसैन ने वो मंजिल पाई जो नफ्स मुतमईन की थी। और कुछ शेर हैं 2-3 जो पेश कर रहा हूँ। कुछ जालिमों ने कौम को फिरकों में बांट दी कर, कुछ जालिमों ने कौम को फिरकों में बांट कर मजहब के एहतराम को पामाल कर दिया। रुखे इस्लाम फिर से खिल उठा है, तबस्सुम ने असर उसका किया है। औलाद की कुर्बानी देकर इस्लाम बचाने की खातिर बिस्तर को मोहम्मद के अक्सर इमरान बदलते रहते हैं। अब्बास के सुपुर्द हिफाजत का काम है, ज़ैनब खुदा के दीन की अजमत का नाम है। अब्बास के सुपुर्द हिफाजत का काम है, ज़ैनब खुदा के दीन की अजमत का नाम है। पाकर दरे रसूल से इरफान व आगही, रोशन को नात कहने का हासिल वखार है। हज़रत मुमताज़ दानी साहब जो शायर औज सुखन मोहतरम रोशन अली रोशन साहब की शायराना सलाहियतों पर तबसरा कर रहे थे। महफिल इख्तितामी मंजिल पर पहुँच चुकी है। मैं मुल्तमिस हूँ शायर औज सुखन मोहतरम रोशन अली रोशन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने क़यादत का इजहार और मुंतखब कलाम गोश गुजार फरमाएँ। नारे सलवात बुलंद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे सलवात। डांस पर मौजूद जनाब सदर शायर शीरी सुखन अली जनाब मुमताज़ दानी साहब को क़िबला अनीसुल शुअरा खतीब इतरत अली जनाब साहब, मेरे अजीज़ दोस्त काशम भाई साहब, हैदर भाई भी मौजूद थे लेकिन किसी ज़रूरी काम से उनको जाना था इसलिए वो चले गए। मैं उनको भी गायबाना मुखातिब कर रहा हूँ। शायर अहले बैत जनाब इकबाल भाई साहब और इस महफिल के रूह रवा जनाब अली जवाद शेखर साहब और मेरे दोस्त तमाम अहबाब, आप तमाम का मैं शिरकत का और आप लोगों की मौजूदगी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। आज के ऐसे पुराशोभ हालात में आप लोगों ने ज़हमत फरमाई और मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आप तमाम का फ़र्दन बेहद ममनून मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी और मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई फरमाई। इससे पहले कि मैं कुछ थोड़े बहुत टूटे फूटे अल्फाज पेश करूँ, गुजारिश ये करूँगा कि मेरी तकरीर को आप लोग तकरीर मत समझिए, बल्कि कुछ तोड़ जोड़ के काम करने जा रहा हूँ मैं। तो शायद हो सकता है कि कुछ बातें जो पहले कहनी चाहिए वो बाद में, और जो बाद में कहनी चाहिए वो पहले हो जाए। तो इस तोड़ जोड़ को आप लोग एक जगह कर लीजिएगा बाद में।
शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम मीर इमदाद अली साहब मकामहू और उनके अलावा मेरे खानवादे, आपके अपने तमाम खानवादे, मरहूमीन मरहूमात, शुअराए किराम, उलमा, उलमा, ज़ाकिरीन, मरहूमीन जितने भी हैं उन सब की अरवाह के लिए एक सूरह फातिहा इरशाद फरमाइए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करता हूँ कि अब जिगर थाम के बैठो मेरी भाई आई। मैं अपनी तकरीर यहाँ से शुरू करूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। तकरीबन मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, अब कुछ गुंजाइश तो बाकी रही नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कई लोग सब जानते हैं मुझे और मैं नहीं समझता कि मुझे और कुछ तफसील बताने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं अपना मेरी ज़िंदगी का पिछला जो दौर गुजरा है थोड़ी सी रोशनी उस पर डालना मुनासिब समझता हूँ। और वो ये कि 1969 में जब मैं हैदराबाद छोड़ा, 1969 जब मैं 19 बरस का था, तब मैं हैदराबाद से तलाश माश के लिए चला गया बाहर और 2013 में खैर खूबी से फिर अपने वतन, अपने शहर विलाय अली अज़ाए हुसैन मैं वापस अपने शहर खैर खैरियत से आप लोगों की दुआओं के दोपहर में वापस आ गया। कहने का मतलब ये है कि 1969 से 2013, यानी अगर आप हिसाब डालें हमारे मैथमेटिशियन की मौजूदगी में, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि तकरीबन 44 साल का कुछ अर्सा बनता है। तो 44 ईयर्स 44 साल में अपने शहर से दूर रहा। आना जाना तो लगा रहता था, लेकिन ये है कि एक जब भी छुट्टी मिलती थी आ जाया करता था। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मैं अपने शहर से दूर होने के बावजूद अपने शहर से जुड़ा रहा और अपने शौक़ और ज़ौक़ इन चीज़ों से भी जुड़ा रहा, जिसमें फ़न शायरी एक बहुत बड़ा मेरा हिस्सा रहा है। तो शायर होने के लिए इंसान के पास दो जो है, मैं समझता हूँ, मेरी समझ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें बहुत उसके पास होना ज़रूरी होती है कम अज़ कम। एक तो विरासत और दूसरे मश्क, प्रैक्टिस। अब इल्म हासिल करना, किताबें पढ़ना, ये सारी चीज़ें उसके ज़ैल में आ जाती हैं। तो अब ये जो विरासत वाला मामला है ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। हमारे दरमियान कई शुअरा किराम ऐसे हैं जिनको ये चीज़ विरासत में मिली है, मुझे भी मिली है, लेकिन दरमियान में बहुत बड़ा खला है। कहना ये चाहूँगा कि मेरे वालिद मोहतरम जिनकी रहबरी और जिनकी तमाम तर मेहनतें मेरे पीछे रही हैं, और उन्होंने जब मेरी विलादत पैदाइश हुई, मैं पैदा हुआ, तो उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस लड़के का नाम जो है मैं अपने दादा के नाम से अगर रखूँगा तो शायद आगे चल के ये कुछ बनेगा। तो पता नहीं उनको दिमाग में ये ख्याल क्यों आया, उन्होंने मेरा नाम मीर रोशन अली रख दिया। और मेरे वालिद के दादा यानी मेरे परदादा मीर रोशन अली थे, हैदराबाद में ही पैदा हुए थे और वो खुद भी एक शायर थे। मैं सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ ना, मैं अपने दादा को देखा। मेरे वालिद कहा करते थे कि वो शायर मिजाज थे, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम भी जो है कुछ इस तरफ रग़बत दिखाओ। तो वो जहन में मेरे बात पड़ी रही थी, लेकिन ये है कि तलाश माश के मामले में मैं जो है इस तरफ रग़बत नहीं कर सका। लेकिन विरासत मेरे पास भी है, लेकिन नहीं के बराबर है। तो बहरहाल मेरे दादा और मेरे वालिद, जैसा कि अभी लोगों ने बताया, आप सब भी वाकिफ़ हैं,
मैंने दादा को तो देखा नहीं है, लेकिन मेरे वालिद आप तमाम के दरमियान बहुत ही मारूफ अर्शिया को और नौर खान रह चुके हैं। मौला उनके दर्जा बुलंद करे। उन्हीं की रहबरी और उन्हीं की मेहनतें हैं कि आज मैं आप दोनों के दरमियान यहाँ खड़ा हूँ। और अब रहा सवाल मश्क का, तो मश्क का मुझे मौका उतना ज़्यादा मिलता नहीं था, चूँकि मश्क के लिए इंसान को माहौल और मश्क, बाहर निकलो माहौल लेने के लिए, घर पे पढ़ाई करो मश्क हासिल करने के लिए। तो मश्क के लिए किताबें तो जमा थी मेरे पास, लेकिन मेरे पास माहौल नहीं था। तो वो चीज़ मुझे बहुत पीछे कर रही थी इनकी शायरी के हवाले से। बहरहाल जितना भी मुझसे हो सकता था मैं कोशिश करता था। लेकिन जब मैं इमारात पहुंचा 1986 में, पहले तो मैं नेवी में नौकरी करता था, वहाँ तो कोई ऐसा माहौल था नहीं। 15 साल का अरसा वहाँ से गुजार के जब मैं 86 में इमारात पहुंचा तो थोड़ा बहुत माहौल मिलने लगा। वहाँ पर महफिल वगैरह हुआ करती थी। तो शायर मिजाज का एक और वतीरा ये होता है कि वो तलाश में रहता है कि कहाँ महफिल हो रही है, कहाँ कोई जश्न हो रहा है, कहाँ मजलिस हो, ये सब चीज़ें वो तलाश करता रहता है। बहरहाल मुख्तसर ये कि मेरे को मौका मिला इमारात में थोड़ा बहुत, और बिलखुसूस मौलाना ज़िशान नज़र जवादी की जो सोहबत मिली हमको, उसकी वजह से हमको जो थोड़ा सा कलाम कहने, दिखाने, तरही गैर तरही, ये सब चीज़ों का हमको जो है फ़ायदा पहुँचा। और ख़ुद उनकी बज़ाते खुद वो एक मौलाना मुश्तगल थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, तो उसका भी हमें जो है फ़ायदा बहुत बहुत हुआ। और इसके अलावा मेरे उस्ताद मुहतरम, शुरू जब मैं नेवी में हुआ करता था उसी वक्त से मैं मुहतरम खान नक्शर फ़ज़ाइल अली जनाब मीर इब्राहिम अली हामी साहब से मेरे वालिद साहब ने रुजू करवाया था, तब से मैं उनके साथ यानी मेरे उस्ताद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। मेरी दुआ है कि ऐसे जैसे कि कल किबला ने कहा, ये पूरे नूर है हमारे शहर के लिए, हमारे मैं तमाम को शामिल करते हुए मैं दुआ करता हूँ कि तसद्दुक़ बीमार करबला मौला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। उनके अलावा और जो भी शोरा उदवा उलमा जो भी मरीज़ हैं, बीमार हैं, इन हालात से लड़ रहे हैं, उनको भी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। हम सबको भी सेहत तंदुरुस्ती से कायम रखे। अभी जो जिक्र हुआ सलीम नज़वी साहब का, इत्तेफाक की बात ये थी कि उसको मैं साफ कर दूँ बात को। मेरे मुस्तनद उस्ताद तो हामी साहब थे और रहेंगे, लेकिन मैंने सलीम नज़वी साहब से भी बहुत कुछ सीखा। उसकी वजह ये थी कि दरमियान में कुछ बड़े लोग हमारे, मैं तो था नहीं यहाँ पर, हमारे बड़े लोगों के दरमियान कोई नाइत्तेफाकी हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रुप बन गया था। यहाँ पर ग्रुप बनना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा वाक़िफ़ है। तो उस ग्रुप बंदी में हुआ ये कि एक ग्रुप ने कहा कि हम आपकी महफिल पढ़ेंगे, दूसरे ग्रुप ने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो वालिद साहब ने कहा कि भाई देखिए, मेरा काम है सबको मधु करना, कौन पढ़ना चाहता है कौन नहीं पढ़ना चाहता, मेरे सबके साथ ताल्लुकात बराबर है। तो उसी जीवन में हुआ ये कि हामी साहब को कुछ लोगों ने अपनी तरफ खींच लिया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हामी साहब कुछ अर्सा मेरे घर की महफिल नहीं पढ़ रहे थे और मेरा कलाम भी नहीं देख रहे थे। ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं है वो, 2 साल 3 साल या 5 साल जो भी हुआ। उस दरमियान में फिर सलीम नज़वी साहब का इंतकाल भी हो गया। तो मैं फिर जाके अदवन गुजारिश किया हामी साहब से कि मेरे को वापस अपनी जो है कलाम में ले लीजिए आप। उन्होंने उसको कबूल किया। इसमें रज़ा मूसवी साहब का भी मेरा साथ रहा, चूँकि वो मेरे स्कूल के साथी रहे हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन जो है रज़ा मूसवी के ज़रिए गया था। मैं नहीं समझता कि उनकी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि हामी साहब इतने मुंतसिबुल मिजाज इंसान हैं और इतने, मैं जितनी तारीफ़ करूँ मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी तारीफ़ के लिए। बहुत ही बहरहाल थोड़ा बहुत टूटा फूटा कलाम उनके बारे में मैंने जो हो सका वो कल सुना दिया आप लोगों को।
जो वहाँ मौजूद थे वो लोग सुने होंगे, और जो महरूम रहे हैं, बहरहाल ये है कि वो मेरे को कबूल किए और मैं उनके साथ आज भी उनके तलामे में शामिल हूँ। और मेरे लिए ये शर्फ है, कि मेरे लिए इज़्ज़त अफजाई है, इतने बड़े शायर और इतने बड़े शख्सियत का मैं शागिर्द हूँ, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं भी कुछ अपनी शायरी को इस मंजिल पे ले जाऊँ कि मैं उनका नाम मेरा रोशन है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनका भी नाम रोशन रख सकूं और उनके बयार पे, उनके जो भी उनका जो बयार है उन्होंने मेरे बारे में मुंतखब किया, उस पर पूरा तकरीर लंबी न हो जाए, तो वापस मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। ये जो शिरकत के बारे में तो मैंने आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन बज़्म कारवाने मीसम का भी मैं बेहद ममनून और मशकूर इसलिए हूँ कि उन्होंने मुझे इतने बड़े खिताब से नवाजा है, जिसका कि शायद मैं मुस्तहिक़ था या नहीं था, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि आप जैसे जानते हैं, हैदराबाद में खिताब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर इंसान एक एक खिताब लेके फिर रहा है यहाँ पर। मेरे से ज़्यादा बखूबी आप लोग वाकिफ़ हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं। अगर मैं किसी साहब से कहूँ कि भाई आज मुलाकात हुई थी, तो वो पूछेंगे किससे, मैं कहूँगा अय्यूब अली साहब से मुलाकात। तो फिर थोड़ी देर के लिए वो ऐसे ऐसे करके पूछेगा, अय्यूब अली? कौन से अय्यूब अली? फला फला। मैं नहीं बताऊँगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। तो हर 99% लोगों को यहाँ से किताब से नवाजा जा चुका है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने किताब से नावाकिफ था। मेरे कौन सा किताब लगा हुआ है मेरे नाम के आगे, आज तक मुझे नहीं मालूम था। अगर है कोई किताब लगा हुआ, मुझे इल्म नहीं है, तो आज मुझे पता चला कि मुझे एक किताब से नवाजा गया है, और उस किताब का नाम है शायर औज सुखन। अब ये औज सुखन जो है, सुखन तक तो ठीक था, ये औज वाला चक्कर जो है मेरी समझ नहीं है। अच्छा, ये मेरा पसंदीदा लफ्ज़ ज़रूर है, और इसकी जो है अक्कासी और इसकी जो चीज़ है, ये कोशिश मैं समझता हूँ कुछ चुनिंदा लोगों का काम है जिन्होंने ये काम किया है। बहरहाल मैं बेहद ममनून हूँ बज़्म कारवाने मीसम का कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की और मेरे को इस खिताब से नवाजा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पर पूरा उतरूँ और इसकी जो है इसका भरम रख सकूँ। अब रहा सवाल, मैं अपनी ज़िंदगी का मुख्तसर खाका पेश कर चुका, शायरी के हवाले से बता चुका। माहौल की बात कर रहा था। माहौल जो है मुझे वहाँ ना तो मिला, और मिला भी तो बहुत कम, लेकिन जैसे ही मैं 2013 में हैदराबाद बारी हुआ, शहर विलाय अली अज़ार हुसैन, जिसका तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि सारी दुनिया में ये इस काम के लिए बेहद सराहा जाता है, माना जाता है, और इसकी पजीराई जो है सारी दुनिया में होती है। यहाँ पर महफिल की और मजालिस की कोई कमी नहीं है। माहौल इतना अच्छा बनता है, यहाँ पर मिलता है एक शायर को या किसी भी फन का आदमी होने दो, अगर अपने फन को वो निखारना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर ज़राए मौजूद है। तो चूँकि फ़न शायरी से हमारा पैदाइशी लगाव है, इसलिए हम भी जो है माहौल की तलाश में निकले, तो हमें जो है दो जो है नगीने नज़र आए। उस्ताद मेरे जो थे वो इतने मतलब उनकी ज़ईफ़ी और उनकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता था, लेकिन बहरहाल उनसे राब्ते में रहा ज़रूर करता था। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन दो नगीनों से मेरा जो है मिलना हुआ है, मैं उनका जिक्र किए बगैर अपनी तकरीर को नातमाम समझूंगा। सबसे पहला नगीना और सबसे पहले जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो आपके सामने मौजूद आज के इस महफिल के सदर शायर शीरीन सुखन मोहतरम मकाम आदि जनाब मुमताज़ दानिश साहब हैं, जिनके रोज़मर्रा के मुलाकातों में जब भी मैं मिलता रहा उनसे ज़रूर कुछ न कुछ हासिल करता रहा। उन्होंने मुझे बहुत कई जगहों पे मेरे को जो है उन्होंने मदद की, मेरी रहबरी फरमाई कई महाफिल में, चाहे वो गज़ल की हो, चाहे वो मदर की हो, जहाँ कहीं भी मुनासिब समझते थे वो मुझे ज़रूर ले जाते थे।
ये उन्हीं की जो है हिम्मत अफजाई है, उन्हीं की कोशिशों और मेहनतों का नतीजा है कि आज मैं इतने एतराफ़ात और खिताबात के साथ आपके सामने खड़ा हूँ, और उनकी मैं जितनी भी तारीफ करूँ, शुक्रिया अदा करूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसके बाद दूसरा जो नगीना है, नगीना साज है, खुद नगीना है और नगीना साज है, वो खुश फिक्र, खुश फहम, खुश मिजाज, खुश अखलाक, मुनकसिरुल मिजाज, उस्ताद शेर व सफ़न और फ़न शायरी का माहिर, महारत रखने वाला दूसरा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे दिल के करीब है वो है अली जब्बार शहपर साहब, जिन्होंने मुझे यूँ समझिए कि एक छोटे बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के ले जाया जाता है, रास्ते बताए जाते हैं, घुमाया फिराया जाता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हैदराबाद में मेरे से करवाई हैं। क्योंकि मसला मेरे साथ ये था कि 40-44 साल मैं हैदराबाद से बाहर रहा। होता ऐसा है कभी इंसान जब बुजुर्गी में चला जाता है तो बचपना वापस आ जाता है। दरअसल मसला मेरे साथ ये था कि जैसा कि मुकर्रिरीन ने भी बताया, मैं खुद भी नश्र नफीस अपने बारे में बताना मुनासिब समझूंगा कि मैं थोड़ा सा मोहताज किस्म का इंसान हूँ, शोहरत और तारीफ का बिल्कुल भी ख़ाइल नहीं हूँ। ये मैं आज अपने लफ्ज़ों में अपनी ज़बान से बता रहा हूँ और इस पर अमल भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि लफाजी कर रहा हूँ, अमल भी करता हूँ। और मेरे जो साथी हैं अबू धाबी के या इमारात के, यहाँ बैठे हुए हैं, यावर भाई हैं, परवेज़ हैं, बाखर भाई हैं, और भी लोग, बहरहाल ये लोग भी मेरी फितरत से वाकिफ़ है। वहाँ भी मेरी जितना भी टाइम गुजरा है, मैं जो है पर्दे के पीछे रह के काम करने का ख़ायल रहा, और कोशिश यही रहती है कि भाई शोहरत इंसान को जो है ना वो खुद के डिमांड करने से नहीं मिलती है, बल्कि उसको लोग जो है महसूस करना चाहिए, तो वो चीज़ जो है वो तादेर कायम रहती है। तो हुआ यही कि मैं 40-44 साल के बाद आने की वजह से हैदराबाद में अपने शहर में भी मैं अपने आप को बेगाना महसूस करता था। जो लोग वाकिफ़ थे वो थे, जो पुराने लोग थे, 44 साल का गैप का मतलब क्या हो गया, एक 2 जनरेशन का गैप आ गया। तो कई लोग नहीं पहचानते थे मुझे, और क्योंकि मेरी फितरतन भी मैं थोड़ा सा मोहताज किस्म का था, तो मैं महफिल वगैरह पर सुनने ज़रूर जाता था, महफिल अटेंड करता था, लेकिन मैं पढ़ता नहीं था। लेकिन ये कोशिश और काविश और मेहनत इन साहब की है, जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के नहीं, आप जब कहते हैं कलाम तो आपको पढ़ना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। मतलब मेरा ख्वाब, हैदराबाद जैसे शहर में मेरा कलाम कौन सुनता भाई, कोई नहीं सुनते। बोले नहीं, आप मजे अहले बैत करते, सुनना लोगों को नहीं है, सुनना सुनाना उनको है। यही बात बाखर भाई भी कई अरसे से मुझसे कहा करते थे कि रोशन भाई आप कहते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं। तो यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा हिम्मत अफजाई का काम भी की, और मैं थोड़ा सा जिद्दत भी करने लगा। और आज भी मैं खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, मगर अंदर से जो है ना बहुत खैबत पाया हुआ। तो लेकिन ये डर खौफ जो मेरा है ना, ये निकालने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पास इनके लिए शुक्रिया के अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। बहरहाल ये किताब जो आप लोगों के सामने आई है मंजर आम पे, इसके पीछे भी इनकी काफ़ी मेहनत है। इन्हीं की जिद्दत थी कि किताब भी आपकी शाये करवाइए, कलाम काफ़ी जमा हो गया, तो वो भी जो है मैंने अंदर का हाल तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़िएगा, कुछ सफ़े ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन जो कुदरत जो नज़र आ रही है किताब की, वो भी जो है मैं कहे बगैर तीसरा नगीना जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। ये इस किताब की जो चेहरा आपको नज़र आ रहा है और इसकी जो किताबत हुई है, ये सारा जो है काम हमारे आर्ट जोन के मेहदी भाई साहब यानी दानिश साहब के दूसरा जो है दूसरे फर्जंद, उनकी मेहनत और उनकी कोशिश, फर्जंद अर्जुमन कोशिश। बहरहाल तकरीब काफ़ी लंबी हो रही है, फयाज भाई नाराज़ ना हो जाएं, तो बहुत दूर से सुन रहे हो तो मैं समेट रहा हूँ। तो मेहदी भाई की काफ़ी इसमें मेहनत है,
मैंने बहुत तंग किया उनको, बहुत मेहनत करवाई, 2-3 बार किताबत करवाया मैंने। और बहरहाल जितना भी मैं बोलूँ कम है, काफ़ी उनकी मेहनत है। आप लोग उनके हक़ में दुआ फरमाइए कि अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात में और उनके ज़िंदगी के नेक मकासद में उनको कामयाबी नसीब करता है। और फिर एक बार मैं आप तमाम को ममनून और मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब थोड़ी सी समाखराशी शायरी के हवाले से सिर्फ 5-5 शेर 4 या 5 मौजूद की शान में। वैसे तो किताब इंशाअल्लाह किताब का तो हमारे शैफर साहब, और शैफर साहब ने जो मेरे बारे में और इन्होंने मेहदी भाई ने जो कलाम पेश किया है, उसके लिए भी जो है अल्फाज नहीं है मेरे पास। बहरहाल इन दोनों का ममनून मशकूर। और मैं दानिश साहब की शान में जो है ना जितनी भी दुआ करूँ कम है कि 2 नगीने उन्होंने ऐसे पेश किए हैं कौम के सामने, जिसका जो है खिदमत लोग जो है एतराफ़ करते हुए करना चाहिए और उनकी खिदमत से जो है इस्तेफ़ादा करना चाहिए। और बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही घर में 2 जो है, ये छुपे हुए शायर हैं, आज तक बाहर किसी के सामने कलाम नहीं पेश किया इन्होंने। ये मेरा इसरार था, मेरी ख्वाहिश थी बल्कि कि अपने फ़न को जो है ज़ाहिर करें, तो वो भी जो है आज अपना जो है तहनीती नज़र पेश किए। उनकी तहनीती नज़र सुन के मेरे को भी हिम्मत बढ़ गई या मैं भी महफिलों में डंके की चोट पे जो है ना जा सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तो बहरहाल आइए मैं थोड़ी सी समाखराशी आप लोगों को अपने